Good morning, respected director, sir, and all seniors and colleagues and juniors. Today's trial name is Sano trial. It is neoadjuvant chemoradiotherapy followed by active surveillance versus standard surgery for esophageal cancer, a multi-center stage-based cluster randomized non-inferiority phase 3 trial. So this trial was published in uh, March 17, 2025, and it was done in Netherlands. So, what the aim of this study was to investigate whether active surveillance could be an alternative for individual with a clinical complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy. So, SANO trial is basically named as surgery as needed for esophageal cancer. So, SANO trial bola hai. So, in introduction, neoadjuvant chemoradiotherapy. Just this is for locally advanced Yes, sir. Yes, sir. Locally advanced. locally Ji, advanced. sir. So, in introduction, neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgery is a standard treatment for locally advanced esophageal cancer. So, after trimodality treatment, means chemoradiation, uh, nearly a quarter of patient with adenocarcinoma and nearly half of the patient with squamous cell carcinoma have pathological complete response. So, this was observed in cross trial. So, in cross trial, there was patient they actually divided in taken the patient with chemoradiotherapy standard treatment. So they after chemoradiation they observed that after in adenocarcinoma there was 25% response, and in squamous cell carcinoma there was 50% response. But the squamous cell carcinoma patients were less than uh, adenocarcinoma, because in Western countries squamous cell carcinoma is less prevalent. So, active surveillance has been proposed as an alternative for standard surgery. So, surgery performed only in individual with locoregional regrowth in the absence of distant metastasis. The benefit of avoiding esophagectomy are clear, given that approximately 60% of patients develop post-operative complication and many experience decreased health-related quality of life. So, in actually esophageal surgery is very one of the large surgery in कैंसर सर्जरीज. सो उसमें कॉम्प्लिकेशन तो होते ही हैं. मोस्ट कॉमनली इट इज़ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, एंड ऑल्सो देयर इज समटाइम्स मोर्टेलिटी इज़ ऑल्सो दे आर 1 to 2%. तो उन्होंने ये बोला कि व्हाट इज़ द पॉसिबल हार्म ऑफ सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस अगर कर रहे हैं तो पोटेंशियली इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पोस्टपोनिंग इसोफेजेक्टोमी. मीन्स कि अगर जो टाइम है कि हाँ इस टाइम अगर कीमो रेडिएशन मिल जाना के बाद सर्जरी हो जानी चाहिए, लेकिन अब हम उनको एक्टिव सर्विलेंस में डाल रहे हैं, तो इस वजह से पोस्टपोन हो जाता है. तो उनका ये कहना है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन आफ्टर पोस्टपोनिंग इसोफेजेक्टमी. सेकेंड ये पॉसिबल हार्म बोल रहे हैं, अनडिटेक्टेड लोकोरिजिनल ग्रोथ ड्यूरिंग एक्टिव सर्विलेंस could result in development of distant metastasis or non-radical resection, potentially jeopardize overall survival. And third is frequent clinical response evaluation could cause a physical, mental and financial burden for individual during active surveillance. क्योंकि इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, मैं बताऊँगा कि प्रोटोकॉल क्या है सर्विलेंस का. So it is a multi-center, step-based, cluster randomized non-inferiority phase 3 trial that comparing overall survival on the patient with locally advanced esophageal cancer and who have complete clinical response after neoadjuvant chemoradiation. So this was done in 12 Dutch hospital, and this was approved in November 1, 2017. So the protocol was that the participant should be more than 18 years old, locally advanced cancer of esophagus and GE junction, and they schedule for neoadjuvant chemoradiation as per क्रॉस रेजिमेन. तो क्रॉस रेजिमेन में इन्होंने कीमो रेडिएशन दिया था जिसमें पैक्ली कार्बो देते हैं और साथ में रेडिएशन 41.4 ग्रे देते हैं. After randomization and masking, this trial is step-based cluster randomized method was chosen.
In this way, the timing of switching from control group to intervention group was randomized using computer-generated sequences without stratification method. Eventually, all clusters were randomized assigned to active surveillance until completion of target sample size. So इसका मतलब होता क्या है स्टेज बेस्ड क्लस्टर का? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग 4 क्लस्टर मतलब क्लस्टर लिए, उन्होंने क्या किया, क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे इसको डिवाइड नहीं कर रहे, उन्होंने हॉस्पिटल बेसिस पे ले लिया। जैसे 12 डच हॉस्पिटल्स लिया, तो किसी हॉस्पिटल को बोल दिया उन्होंने कि आप एक्टिव सर्विलेंस करो, किसी को बोल दिया कि आप ईसोफेजेक्टिवी करो। उस हिसाब से उन्होंने क्लस्टर बनाया। और ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये बीच बीच में वो ऑब्जर्वेशन के लिए लाइन है कि हाँ अब इस पीरियड में और ये टाइमिंग है, मतलब मंथ्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि मतलब एक्चुअली कितना मतलब जो क्लस्टर उन्होंने बनाया है उसमें क्या रिस्पॉन्स है, किसमें डिजीज़ आ रही है, उसके बाद फिर ईसोफेजेक्टोमी करनी पड़ी। तो ये जो ब्लू लाइन है ये बता रहा है कि अब अपन ने इसको इंटरवेंशन किया एक्टिव सर्विलेंस वाले ग्रुप में। तो एक्टिव सर्विलेंस का ग्रुप को इंटरवेंशन करने के बाद फिर अब उसमें सर्वाइवल का क्या है उसको देखा गया, इसलिए इसको स्टेप बेस्ड क्लस्टर ट्रायल बोला गया। सो प्रोसीजर, द फर्स्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स इवेल्युएशन वाज प्लान 6 वीक आफ्टर न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। तो पहला जो होता है, जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वैसे ही, कि आफ्टर कीमो रेडिएशन 6 वीक के बाद हम लोग उनका CT स्कैन करा करके रिस्पॉन्स इवेल्युएशन करते हैं। तो वही है प्रोटोकॉल कि 6 to 8 वीक पे रिस्पॉन्स इवेल्युएशन करना, और अगर सब सही लग रहा है तो फिर सर्जरी हम लोग प्लान करते हैं। एज जो हमारे यहाँ CHRI का ही प्रोटोकॉल वही सेम टू सेम ही है। और इसमें वो करते हैं एंडोस्कोपी विथ बाइट ऑन बाइट बायोप्सी, मतलब एक ही जगह से 3-4 बायोप्सी, 3 से 4 पॉइंट लेकर के बाइट ऑन बाइट बायोप्सी लेते हैं। अगर उसमें कोई वायबल ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर उसको माना जाता है कि हाँ ये क्लिनिकल रिस्पॉन्स हो गया है। तो सेम हम लोग भी हमारा भी यही प्रोटोकॉल है कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्स करा है तो पहले हम लोग, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो पहले पेट CT के लिए हम लोग पूछते हैं। अगर पेट CT करा लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट CT स्कैन तो कराते ही हैं। और साथ में एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कितना उसमें उसको रिलीफ मिला है। उसके बाद फिर पार्टिसिपेंट वे आर प्लान फॉर अब सेकेंड, जो अब इसमें से हम लोगों ने देख लिया कि हाँ कितनों को क्लिनिकल रिस्पॉन्स मिला है। अब क्लिनिकल रिस्पॉन्स के बाद फिर अब सेकेंड जो उसका इवेल्युएशन होता है वो 12 वीक पे होगा। सो सेकेंड इवेल्युएशन में क्या क्या करते हैं, तो पेट CT स्कैन इन्होंने किया है और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया है विद फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ सस्पेक्टेड लिम्फ नोड। अगर उनको कोई सस्पेक्टेड लिम्फ नोड लग रहा है तो उसका FNAC भी कर लिया उन लोगों ने। और थर्ड प्रोटोकॉल है उनका है कि एंडोस्कोपी विथ एटलीस्ट 4 बाइट ऑन बाइट बायोप्सीज एंड बायोप्सीज वे आर टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइमरी ट्यूमर साइट एंड फ्रॉम एनी सस्पिशियस लीजन। कहीं पे अगर उनको कुछ सस्पिशियस लीजन दिख रहा है तो वहाँ से बायोप्सी किया उन्होंने। अब उसके बाद when locoregional vital tumor cells were detected during clinical response evaluation, so participant without distant metastasis on PET CT then underwent surgery within 2 weeks, and esophagectomy was also performed in case of if there is any high grade dysplasia, या फिर अगर एंडोस्कोपी हम कर रहे हैं और जिस जगह पे पहले ट्यूमर था वहाँ से एंडोस्कोपी पास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी उन्होंने esophagectomy कर दिया है उनका। सेकेंड, उसके बाद फिर फॉलोअप कैसे करते हैं, तो एवरी 3 मंथ होता है इन 1 ईयर, और उसके बाद फिर एवरी 4 मंथ्स इन 2 ईयर, एवरी 6 मंथ इन 3 ईयर्स एंड देन एनुअली फॉर 4 to 5 ईयर्स। ये इनका प्रोटोकॉल है। तो आउटकम, द प्राइमरी एंड पॉइंट वाज ओवरऑल सर्वाइवल, और ओवरऑल सर्वाइवल का उन्होंने डिफिनेशन दिया कि इट इज़ इंटरवल बिटवीन reaching clinical complete response, that is date of biopsy taken at second clinical response evaluation, that is 12 week after neoadjuvant chemoradiotherapy, and the date of all cause mortality or censored, मतलब कि अगर कोई पेशेंट जो है वो फॉलोअप में अगर वो नहीं आ रहा उसको censored बोलते हैं। द प्राइमरी आउटकम वाज नॉन इन्फेरिटी एट 2 ईयर्स, और सेकेंडरी आउटकम में उन्होंने लिखा है कि डिजीज़ फ्री सर्वाइवल देख रहे हैं, और अदर है कि ऑपरेटिव और पैथोलॉजिकल आउटकम्स देख रहे हैं, जैसे R0 रिसेक्शन कितनों में आया है और कितनों में रिसेक्शन कर नहीं पा रहे हैं, रेट ऑफ क्लिनिकल इरेसेक्टेबिलिटी, पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए, पोस्ट ऑपरेटिव 90 डे मोर्टेलिटी रेट एंड हेल्थ रेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव सर्विलेंस। अगर एक्टिव सर्विलेंस कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना कॉस्ट हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। सो अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में उन्होंने ये एंटिसिपेट किया है कि इफ़
they anticipated that 2 years survival from the date of reaching clinical complete response for the individual undergoing standard surgery was 75%. तो उन्होंने देखा अपने जितना क्लस्टर उन्होंने लिया था उसमें 224 पेशेंट्स वेयर क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड हैड टू बी इंक्लूडेड टू डिटरमाइन नॉन इन्फीरियरिटी ऑफ ओवरऑल सर्वाइवल फॉर एक्टिव सर्विलेंस कंपेयर विथ नॉन स्टैंडर्ड विथ स्टैंडर्ड सर्जरी and power is 80% and significance level is 5%. So non-inferiority of active surveillance was defined as overall survival of 15% or less below the anticipated 75% 2-year survival rate. मतलब इन्होंने ये सोचा कि हम देखते हैं कि ये तो मान ही लिया कि 75% तक लोग मतलब रहेंगे, मतलब 100 में 75 रहेंगे, ये एजम्पशन है उनका 2 years पे. अब इस 75% में उन्होंने 2 ग्रुप में कर दिया है, एक एक्टिव सर्विलेंस है और एक सर्जरी है. तो उन्होंने देखा कि अगर जो स्टैंडर्ड सर्जरी उससे अगर 15% कम, मतलब कि अगर 60% से कम अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये नॉन इन्फीरियरिटी नहीं है. लेकिन अब रिज़ल्ट फिर देखते हैं कि उसमें आया क्या है. तो यही नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल इन्होंने लिया है. तो ये वन साइडेड ट्रायल है जिसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेकर के इन्होंने ये बोला कि 15% का हम लोग देखेंगे कि वो मार्जिन उन्होंने 15% का लिया है उसमें नॉन इन्फीरियरिटी के लिए. The active surveillance was defined is non-inferior if one-sided 95% confidence boundary of difference in 2 years survival estimate between the active surveillance and standard surgery was below the non-inferiority margin of 15%. वही ये जो 15% का मार्जिन इन्होंने देख रखा था वो बोल रहे थे कि अगर नॉन इन्फीरियरिटी हम तभी बोलेंगे जब ये क्रॉस कर जाएगा 15% को. ये और ये वन साइडेड है, मतलब कि वन साइडेड दो तरह का ये होता है, एक वन साइडेड और टू साइडेड होता है. वन साइडेड में हम लोग एक हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें इन्होंने 15% रखा है. लेकिन टू साइडेड में वो सिर्फ ये बोलते हैं कि या तो इस निगेटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव की तरफ से जाएगा, वो टू साइडेड होता है. अब रिजल्ट, so from November 8, 2017 to January 17, 2021, 1,115 individuals were screened, and out of them 809 individuals provided informed consent and 776 participants were included in the study. So after the first and second clinical response evaluation, the 35% patient has clinical complete response. So they were assigned for active surveillance and the other or standard surgery. तो इसमें 274 में उन्होंने 156 को एक्टिव सर्विलेंस में डाला और 118 को स्टैंडर्ड सर्जरी में. आफ्टर इंक्लूजन ऑफ 35 पेशेंट फ्रॉम द प्री सानो ट्रायल इन द स्टैंडर्ड सर्जरी ग्रुप, 7 पेशेंट क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम स्टैंडर्ड सर्जरी एंड वेर इंक्लूडेड इन द एक्टिव सर्विलेंस ग्रुप एंड 28 पेशेंट वेर इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड सर्जरी ग्रुप. तो इसमें हुआ क्या था कि एक इन्होंने सानो ट्रायल से पहले इन्होंने एक प्री सानो ट्रायल किया था, ये 2018 में है. तो उन्होंने पेशेंट्स लिए थे 2013 से लेकर के 18 तक. तो उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की थी कि हम जो इनका ये जो मॉडलिटी वाला था प्लान एंडोस्कोपी वाला, ये सेम प्रोटोकॉल उन्होंने रखा था प्री सानो ट्रायल में. और वो ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग जो रिस्पॉन्स को इवेलुएट कर रहे हैं इन सब मेथड्स के द्वारा, तो फाइनल जो सर्जरी में आउटकम निकल रहा है और जो हमें ये इसमें दिख रहा है उसमें कितना सिमिलैरिटीज़ है. तो अराउंड उनको 93 से 94% की सिमिलैरिटी दिखी थी प्री सानो ट्रायल में. result is modified intention to treat population of 198 participants undergoing active surveillance and 111 participants underwent standard surgery. So this was the protocol. 1,115 patients were screened, out of which 809 provide informed consent, and out of them 776 were enrolled. So इसमें से भी 15% को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि लास्ट में उन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर लिया. 5 died and 4 has metastasis before clinical response evaluation. So 761 patient underwent first clinical response evaluation. उसमें भी 291 को एक्सक्लूड कर दिया for various reason. Then after that 470 patient underwent second clinical response evaluation. उसमें 196 एक्सक्लूड हुए क्योंकि 115 को लोकल रीजनल रीग्रोथ हो गया था, 40 में मेटास्टेसिस हुआ था, 19 में नो पास ड्यूरिंग OGD and 17 सस्पेक्टेड डिजीज विदाउट
हिस्टोलॉजिकल एविडेंस। सो फाइनली 274 क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स इनको मिला। साथ में 35 पेशेंट जो थे वो प्री सानो ट्रायल जो थे उसमें से इनको असाइन किया गया, जिन पे प्री सानो में भी जिनको कंप्लीट क्लिनिकल रिस्पॉन्स हुआ था और उसके बाद वो सर्जरी के लिए गए नहीं थे। उसके बाद फिर उसमें से भी उन्होंने क्रॉस ओवर किया, सात पेशेंट का क्रॉस ओवर हो गया। तो फाइनल में फिर ये रहा कि 111 अंडरवेंट सर्जरी एंड 198 इन एक्टिव सर्विलेंस। सो ओवरऑल two year survival rate was 74% for the patient undergoing active surveillance and 71% for patient with a standard surgery, which was 3% higher for active surveillance and was below the predefined non-inferiority margin was 15% for worse overall survival। लेकिन इन्होंने देखा कि 15% मार्जिन उससे ज़्यादा ही उनको 3% हायर रिस्पॉन्स मिला है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एंटायर फॉलोअप 50 पार्टिसिपेंट डाइड इन द स्टैंडर्ड सर्जरी ग्रुप एंड 79 पार्टिसिपेंट डाइड इन एक्टिव सर्विलेंस ग्रुप इन द मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। अब इसमें जब इन्होंने एनालिसिस किया तो दो तरह का एनालिसिस करते हैं इसमें। एक होता है इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में जितना पेशेंट को लेते हैं सबको, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे वो विड्रॉ कर गए हो या उन्होंने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया हो, जो भी हो, लेकिन वो सबको एक साथ इंक्लूड करते हैं। लेकिन मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में क्या करते हैं, जो वहाँ से हट गए हैं या जिन्होंने मतलब ट्रीटमेंट लिया नहीं तो उनको वो काउंट नहीं करते हैं, मॉडिफाइड में वो चेंज हो जाता है। तो जब मॉडिफाइड उसमें किया तब फाइनल जो फॉलोअप में देखा तो स्टैंडर्ड सर्जरी ग्रुप में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट का डेथ हुआ, लेकिन एक्टिव सर्विलेंस ग्रुप में 79 पेशेंट का डेथ हो गया था। सो ड्यूरिंग एक्टिव सर्विलेंस, अब एक्टिव सर्विलेंस जितने पेशेंट्स के एक्टिव सर्विलेंस ग्रुप में डाला था उसमें 17% को तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया और 48% पेशेंट्स मतलब अराउंड 50% पेशेंट्स को लोको रीजनल रीग्रोथ हुआ। तो सिर्फ 35% पेशेंट ही उसमें से बचे जो कि मतलब जिनको क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स मतलब कंप्लीट एक्टिव सर्विलेंस का में वो कंटिन्यू रहे। बाकी इतने को 17% को डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया और 48% को लोको रीजनल रीग्रोथ हो गया, जिस वजह से फिर इनकी सर्जरी करनी पड़ी 48% को। तो इसमें वही चीज़ देखते हैं, अगर 24 मंथ्स तक अगर इसमें देखते हैं तो एक्टिव सर्विलेंस तो है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर सर्जरी जो है वो सर्जिकल ग्रुप के पेशेंट्स का सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा है मार्जिनल इस एक्टिव सर्विलेंस वाले ग्रुप से। सेम इसमें भी वैसे ही है। अगर इसमें डिजीज़ फ्री सर्वाइवल अगर देखते हैं तो इसमें भी वही सेम चीज़ ही इसमें मिल रहा है कि 24 मंथ्स तक तो दोनों का सेम है, लेकिन बाद में जब और लंबा इन्होंने किया 36 मंथ्स में आकर के जो सर्जरी ग्रुप था उसका डिजीज़ फ्री सर्वाइवल इनसे थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन वो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट था नहीं। तो मीडियन डिजीज़ फ्री सर्वाइवल वाज 35 मंथ्स who have active surveillance and 49 months for standard surgery. At the time of second follow-up PET scan, that is 30 months after completion of neoadjuvant chemoradiotherapy, 43% patient with active surveillance group had distant metastasis and 34% patient has standard surgery group that have distant metastasis. So in discussion, after a minimum of follow-up of 2 years, the overall survival after active surveillance was non-inferior compared to the standard surgery for participants with clinical complete response after neoadjuvant chemoradiation. There were no statistically significant differences in DFS and distant dissemination rate. Operative outcome and post-operative complication were similar after postponed surgery for locoregional regrowth compared to standard surgery. जैसे पहले मतलब और लोग मतलब ये कंसिडर करते थे कि अगर हम कीमो रेडिएशन के बाद अगर सर्जरी को पोस्टपोन करते हैं और बाद में सर्जरी करते हैं तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो या फाइब्रोसिस ज़्यादा मिले और फाइब्रोसिस की वजह से फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन इनके स्टडी में वैसा उनको कुछ मिला नहीं कि हाँ मतलब उन्होंने कहा कि डिलेड अगर हो भी रहा है फिर भी उन्होंने जो ऑपरेट किया उसमें इनको कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब सिमिलर कॉम्प्लिकेशन था, वैसा कुछ एक्स्ट्रा उनको दिखा नहीं। Postponed esophageectomy after neoadjuvant chemoradiotherapy was not associated with increased surgical risk in the present trial. ये इनका अपना एक फाइंडिंग था।
it has been argued that active surveillance should only be explored in participant with squamous cell carcinoma, because शुरू में जो उन्होंने देखा था क्रॉस ट्रायल में, उसमें एडिनोकार्सिनोमा में 25% को क्लिनिकल रिस्पॉन्स हुआ था और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में 50% को हुआ। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और उनको मतलब हम रख सकते हैं एक्टिव सर्विलेंस के लिए। सो दिस ट्रायल इंक्लूड बोथ पार्टिसिपेंट इन एडिनोकार्सिनोमा एंड पार्टिसिपेंट विद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बट मोर ओवर इफ पार्टिसिपेंट्स, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, उसमें ये देखा उन्होंने कि इफ़ पार्टिसिपेंट्स हैव क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स, अगर जिनको रिस्पॉन्स हो गया है तो इट इज़ अनलाइकली दैट द एफिकेसी ऑफ एक्टिव सर्विलेंस इज डिफरेंट इन वन ऑफ द टू ट्यूमर टाइप्स। इसमें उनको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला दोनों में। एक्टिव सर्विलेंस में सर्वाइवल जो था वो लगभग सेम ही था, जिसको भी क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला। लेकिन वही पहले जो लोग बोल रहे थे कि नहीं एक्टिव सर्विलेंस में उन्हीं लोगों को डालना चाहिए जिसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, क्योंकि उसका ज़्यादा अच्छा कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है। So they said PD1 and PDL1 with CTLA4 inhibition is associated with improved DFS and increased rate of pathological complete response respectively in esophageal cancer. So इनको देख करके इन्होंने एक नया ट्रायल, ये सानो 3 ट्रायल कर रहे हैं कि application of immunotherapy during active surveillance might decrease the risk of locoregional regrowth and development of metastasis. And this approach is currently being investigated in SANO 3 trial. So the trial, the limitation of this trial is institution level randomization is susceptible for selection bias in contrast to patient level randomization. The second part is participant already knew that they were consenting for at the time of inclusion, and participant might know in advance which hospital offered the treatment of their choice and based their first hospital visit in this preference. मतलब उनको पहले से ही पता था कि हम इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ये हमको सर्जरी के लिए रख रहे हैं और ये हमको एक्टिव सर्विलेंस के लिए रख रहे हैं। ये थोड़ी इनकी लिमिटेशन थी। सो इन कंक्लूजन, पार्टिसिपेंट अंडरगोइंग एक्टिव सर्विलेंस आफ्टर क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स had non-inferior 2 years overall survival compared with those undergoing standard surgery. However, longer follow-up is needed to assess the robustness of this strategy. So postpone, और second thing ये बोल रहे हैं कि postponed esophagectomy was not associated with increased morbidity or mortality, although longer term outcome is awaited.